Hello and welcome, guys. Welcome to all the class 10 aspirants who are working day and night for their board exams. So, after the demand put forward by many of the students, I came up with YouTube channel जिसका नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर है. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टॉपर बनना फेयर है. So, today we'll be studying about geography, that to class 10 chapter 1 resources and development. अब ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द करेंट सिनेरियो गोइंग ऑन इज़राइल ईरान एंड यूएसए वॉर. तो कैसे इस वॉर के समय ऑयल अगेन विच इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोलियम, गैस, इनका सप्लाई डिसरप्ट होता है and how the disruption of these resources impacted life of millions of people. So this chapter is very important. So without wasting any time, let's start the chapter 1 class 10 geography, resources and development. So resources क्या होता है? What is resources? So anything which satisfy human needs. ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके needs को satisfy करता है, but again it has to be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, then we can term it as a resource. अब ये तीन keywords जो हैं ये बहुत important है, 1, 2 and 3. Whenever you write the definition of resources, it must be in your answer. So समझते हैं कि technologically accessible क्या होता है. What do you mean by technologically accessible? It means कि you must have a technology to extract that resources. When I talk about economically feasible, yes, it should be that resources should be affordable, and culturally acceptable means कि whatever resources you are extracting, it should not hurt any social groups or any religion. So then we can term it as a resource. Moving further, this triangle shows interdependence or triangular relationship between physical environment, institutions and technology. So human beings interact with physical environment, institutions and technology. So let's understand this in detail. Physical environment means nature, land, water, climate, etc. When I talk about institution, so these institutions are created by whom? Humans. Just example, government, laws, education, economy. And we talk about technology, it deals with tools and machines. So इन तीनों का आपस में एक strong relationship होता है, ठीक है. So based on this triangular relationship, I'm putting forward a question which says, critically analyze how human interaction with the environment enables the fulfillment of needs while also transforming natural resources, natural systems. अब ये क्वेश्चन आप रट के आंसर नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे रॉट लर्निंग काम नहीं आएगा. You have to understand the question, decode it and then frame the answer. So let's try to answer this. So first is dependence on environment for basic needs. So yes, human beings are dependent on environment for their basic needs. Fine. Second, if we talk about role of technology, तो ठीक है. If we are doing extraction of resources, that is not possible without technology. आप बिना टेक्नोलॉजी से के यूज़ के बिना आप रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इरिगेशन हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, मशीनरी हो गया. सो दीज ऑल कम्स अंडर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड कहीं ना कहीं इफ़ वी यूज़ बेटर एडवांस टेक्नोलॉजी, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ हायर चांस और प्रोबेबिलिटी दैट कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी जनरेटेड, ठीक है. थर्ड इज़ रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस. तो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय बिकॉज लॉज एंड पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाते हैं कहीं ना कहीं वो प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को.
So if you get this question, you can easily explain these 3 points and you're good to go. Great. Next, moving further. In your NCERT book, there is a line, the very first page, that resources are a function of human activities. Justify this statement with 3 examples. Right? Now, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि रिसोर्सेज ह्यूमंस के बिना कुछ नहीं है. अगर ह्यूमंस नहीं होते तो रिसोर्सेज भी नहीं होता, क्योंकि ह्यूमंस ही तो इंटरैक्ट करके रिसोर्सेज बनाते हैं. अभी हमने पढ़ा है ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में. तो रिसोर्सेज डू नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन. दे बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन ह्यूमंस रीऑर्गेनाइज देयर यूटिलिटी एंड यूज देम. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जब मैं बोल रहा हूँ मतलब क्या है? नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड देयर नीड्स. दे कन्वर्ट नेचुरल सब्सटेंसेस इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेस. गॉट माय पॉइंट? तो बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के वो रिसोर्स बन ही नहीं सकता है. गॉट इट? सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोल. अब कोल सबको पता है, बट अगर ये मान लीजिए कि हमें पता ही नहीं होता, इफ़ वी वर नॉट अवेयर अबाउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट कोल एंड हाउ टू यूज़ इट एज अ फ्यूल, तो क्या कोल एक रिसोर्स कहलाता? नेवर. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं. वाटर बिकम अ रिसोर्स व्हेन यूज्ड फॉर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. अगर पानी है बट पानी वो कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा है, नॉट एनी लिविंग बीइंग, तो वो वाटर रिसोर्स कहला ही नहीं सकता है. सो आफ्टर ह्यूमन्स started using water for their own needs such as irrigation, electricity, yes, we can say that water is a resource. Wind से we derive wind energy using windmills. So yes, we can say that resources are a function of human activities, क्योंकि resources को develop करने वाला humans है. So you can frame your own example कि why resources are considered as a function of human activities. Fine. Moving further, अब आते हैं classification of resources. तो on the basis of origin भैया we have two, that is biotic and abiotic. Biotic मतलब living, abiotic मतलब non living. On the basis of exhaustibility, कितने जल्दी वो exhaust होते हैं, we have two, that is renewable, which can be renewed again and again. For example, wind energy, solar energy, hydro energy. Second is non renewable energy. इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? ये हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. फाइन. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो इसमें 4 तरह का होते हैं. एक होता है इंडिविजुअल, विच इज़ ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. ठीक है. एक होता है कम्युनिटी, जैसे पार्क हो गया, ग्राउंड हो गया, तो दीज आर कम्युनिटी ओन्ड. एक होता है नेशनल. तो अगर मान लेते हैं कि इंडिया में जितना भी रिसोर्सेस है तो वो नेशनल है, इंडिया का है. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेस. जो 4th कैटेगरी का है दैट इज़ कॉल्ड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. इसमें 3 रिसोर्सेस है, पोटेंशियल है, डेवलप्ड है एंड रिजर्व्स है. ठीक है. तो इसके बारे में डिटेल आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है. अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, जो आपका टॉपिक है बुक में. तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज कि जब तक रिसोर्स डेवलप नहीं होगा तो हो सकता है वो कंट्री भी ना डेवलप हो. गॉट माई पॉइंट? तो ह्यूमन हैज़ बिन यूजिंग रिसोर्सेज एज अ फ्री गिफ्ट्स. तो हम लोग रिसोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, अपने विल के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं. सम आर यूजिंग रिसोर्सेज इन वेरी अनप्लान्ड मैनर. कोई प्लानिंग नहीं है, बस यूज़ किए जा रहे हैं बिकॉज वो अवेलेबल है. तो अगर अनप्लान्ड यूज़ होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो होगी. सो इट मे गिव राइज टू मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. पहला क्या है कि
डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कुछ इंडिविजुअल्स के लिए रिसोर्स को पूरा डिप्लीट कर रहे हैं, अनप्लान्ड यूज़ कर रहे हैं फॉर सेटिस्फाइंग देयर ओन बेनिफिट्स। ठीक है, तो ओन बेनिफिट्स के लिए हम रिसोर्सेज को अनप्लान्ड यूज़ कर रहे हैं, और ये इसकी वजह से क्या हो सकता है? हो सकता है कि रिसोर्सेज फास्ट एग्जॉस्ट कर जाए। तो इससे क्या होगा? जो हमारे फ्यूचर जनरेशन होंगे, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स होंगे, उनके पास इनफ रिसोर्स नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो अगर हम अपने बेनिफिट्स के लिए रिसोर्सेज को अनप्लान्ड यूज़ कर रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि वो रिसोर्स एग्जॉस्ट हो सकता है। इट मे बी एग्जॉस्टेड। व्हेन द रिसोर्स गेट एग्जॉस्टेड, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर फ्यूचर जनरेशन। एंड व्हाट विल द प्रॉब्लम? देयर विल बी नो इनफ रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? So this is the first problem. Moving on to second problem, accumulation of resources in few hands. तो इसमें क्या होगा कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को क्या होगा? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, तो कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होगा। तो इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि ये एक वो लाइन क्रिएट कर देगा। वो कौन सा लाइन होगा? रिच एंड पुअर, या फिर आप बोल सकते हैं हैव एंड हैव नॉट। ठीक है, तो अगर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के पास या उनके पास कंट्रोल है ज़्यादा रिसोर्सेज का, तो जो पुअर लोग होंगे या जो लोग जिनके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल कम होगा, तो जाहिर सी बात वो पुअर होंगे। तो दिस मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ठीक है जी हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे कि प्रॉब्लम हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, पहला प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन कैसे करते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन अगर करना है तो दो वर्ड पे ध्यान दीजिए, ग्लोबल एंड वार्मिंग। सो वी कैन डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग एज व्हेन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ increases by 1 degree Celsius, it is called global warming. Global warming का मतलब क्या होता है? Rise in Earth's temperature. तो we can define global warming as when the average temperature of the earth increases by 1 degree Celsius. पहला प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? पोल्यूशन। द सेकेंड प्रॉब्लम कैन बी पोल्यूशन, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या सॉइल हो। थर्ड प्रॉब्लम, लैंड डिग्रेडेशन। Land degradation. What do we mean by land degradation? When when the land is degraded, means its quality is compromised, then we say that it is degraded. Suppose loss of fertile land, that comes under land degradation. So when a land is degraded, it harms nature and living organisms both. So we have discussed three problems. First one was depletion of resources for satisfying few individuals. Second, accumulation of resources in few hands, which will divide the society into rich and poor, or have and have nots. Third, we discussed about global ecological crisis, which may lead to problems like global warming, pollution, land degradation. So in a nutshell, overuse, unequal distribution and careless use of resources create shortage, inequality and environmental problems. Got my point?
Moving further, an equal distribution of resource has become essential for a sustained quality of life and global peace. This line has been taken from NCERT textbook and it may appear as a question. So now you need to understand this line. What does it say? When we say equitable distribution of resources, it means what? Resources should be shared fairly. तो रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. द रिसोर्सेज मस्ट बी शेयर्ड फेयरली अमंग ऑल पीपल एंड कंट्रीज एंड नॉट जस्ट कंट्रोल्ड बाय फ्यू. ठीक है. अब मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ इट शुड बी शेयर्ड फेयरली एंड इक्वली. तो इफ़ रिसोर्सेज आर शेयर्ड प्रॉपरली देन व्हाट विल हैपन? कुछ तो होगा. दैट्स व्हाई वी डिस्कसिंग कि हाँ करना चाहिए भाई. तो क्यों करना चाहिए? So that everyone gets their basic needs. ये तो यूनिवर्सल राइट्स है. फाइन. People can have, so that people can have a better and stable life. Better and stable life. वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना है. अगर जहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा अगर वहाँ तक आप वीडियो बिना स्किप किए देख लिए तो 1% भी डाउट नहीं होगा. आई प्रॉमिस यू. ठीक है. तो रिसोर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज को जब हम शेयर करते हैं फेयरली. और क्यों करना चाहिए? सो दैट एवरी वन गेट्स देयर बेसिक नीड्स. पीपल कैन हैव अ बेटर एंड स्टेबल लाइफ. सो दैट देयर इज़ अ पीस एंड लेस कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. बट रिसेंट सिनेरियो क्या है? अ फ्यू पीपल एंड कंट्रीज आर यूजिंग टू मेनी रिसोर्सेज एंड दिस हैज़ क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज फॉर अदर्स एंड क्रिएट्स इनइक्वालिटी. ठीक है. फाइन. तो इन अ नटशेल इफ आई वांट टू से देन आई कैन से यू कि fair sharing of resources is necessary for a good life, for a better life, you can say, for a better life and peace. ठीक है. तो ये लाइन का मतलब क्रिस्टल क्लियर है. फाइन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाँ. नाउ मूविंग ऑन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट should not compromise with the needs of the future generations. ठीक है. तो let's discuss कि few developments. डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई भी डेवलपमेंट जिसके कारण किसी भी इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं हो रहा है और जो डेवलपमेंट प्रेजेंट में हो रहा है उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बट कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंटली इंडिया में जो सस्टेनेबल नहीं हैं. चलिए डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस फ्यू डेवलपमेंट्स. जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस. तो वहाँ पे क्या हुआ था? तो वहाँ पे जो हाउसेस थे, रोड्स थे, बिल्डिंग्स थे जो डेवलप किए गए थे उसमें क्रैक्स आ गया था एंड दे स्टार्टेड सिंकिंग. तो अब ये अनसस्टेनेबल क्यों हुआ? बिकॉज एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन की वजह से, जैसे होटल्स हो गए, रोड्स हो गए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए. तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो एक टनलिंग फॉर प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे एक टनल बनाया जा रहा था फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट.
तो ये एक्चुअली आपके हिमालयन रीजन में आता है, और आपको पता होगा कि हिमालयन रीजन जो है थोड़ा सेस्मिक जोन है, वहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ का जो लैंड था वो दबने लगा, इट स्टार्टेड टू सिंक, जिसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेजिडेंट्स, वहाँ के लोगों को वो जगह छोड़कर जाना पड़ा। रिस्क टू लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हो सकता है कभी इंफ्रास्ट्रक्चर वो कोलैप्स कर जाए। सो दिस वाज द केस ऑफ जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस, एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल सस्टेनेबल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि आपसे हो सकता है कि एग्जाम्पल्स पूछ दे, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड नो कि हुआ था क्या हुआ था। सेकेंड, इशू ऑफ अरावली हिल्स। तो इशू ऑफ अरावली हिल्स क्या था, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो अरावली हिल्स, ये जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया में, हैव बीन फेसिंग व्हाट, इलीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, अर्बन एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ थे यहाँ अरावलीज में चल रहे थे। अब जाहिर सी बात है, ये सब जब चलेंगे तो उनको लैंड चाहिए, तो लैंड कैसे मिलेगा, तो जो भी फॉरेस्ट होंगे उनको क्लियर करना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट। तो अब ये सस्टेनेबल क्यों नहीं है, इस पे बात करते हैं। वाई इट इज़ नॉट सस्टेनेबल? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो व्हेन यू आर कटिंग फॉरेस्ट, इट रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी। जब आप वहाँ से पेड़ पौधा काटिएगा तो जो भी वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट, जो भी एनिमल्स होंगे, जाहिर सी बात है वहाँ से वो हटेंगे, तो उनका शेल्टर, उनका होम इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन इंक्रीजेस। आपको पता होगा ये कि फॉरेस्ट या ट्रीज जो हैं, इट हेल्प्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, दे बाइंड द सॉइल। तो जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे, तो चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। सेकेंड, डेजर्टिफिकेशन रिस्क। अरावलीज जो हैं, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द थार डेजर्ट। आपको पता होगा, अगर ये सपोज राजस्थान है तो अरावलीज ऐसे करके हैं, तो ये एक बैरियर है अगेंस्ट द थार डेजर्ट। अगर ये नहीं होता तो हो सकता था पूरा राजस्थान ही एक डेजर्ट होता, बट चूंकि बीच में अरावलीज है तो इट क्रिएट्स अ बाउंड्री, एंड अरावलीज का डिस्ट्रक्शन अलाउज डेजर्ट एक्सपेंशन टुवर्ड्स फर्टाइल रीजन्स। गॉट माई पॉइंट। तीसरा है वाटर क्राइसिस। अब जहाँ पे फॉरेस्ट होंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे, तो अगर फॉरेस्ट सारा काट दिया जाएगा तो ना तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, और स्लोली एंड इवेंचुअली वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। गॉट इट। फोर्थ इज एयर पॉल्यूशन। तो अरावलीज एक्ट्स एज अ ग्रीन वॉल प्रिवेंटिंग डस्ट स्टॉर्म्स फ्रॉम राजस्थान। तो जो डस्ट राजस्थान साइड से आते हैं, अरावलीज एक्ट एज अ बैरियर फॉर दैट बिकॉज ऑफ थिक फॉरेस्ट। तो एनी डैमेज टू अरावली विल लीड टू मोर डस्ट एंड पॉल्यूशन इन नियर बाई सिटीज़ लाइक दिल्ली। और आपको दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पता ही है, हाउ बैड इट इज़, ठीक है। सो दिस वॉज द इशू ऑफ अरावली हिल्स। मूविंग फर्दर टू रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992. So this was the first international earth summit. Fine. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सो इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो यहाँ पे इस वर्ड को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे डिस्कशन क्या हुई थी कि हाउ टू फाइंड न्यू वेज टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। दोनों चीज़ कैसे साथ में कर सकते हैं, इस पर डिस्कशन हुई थी, जहाँ पे मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट असेंबल हुए थे, मीटिंग किए थे, ठीक है। तो इसका की आउटकम क्या था, अर्थ समिट का की आउटकम क्या था? तो फर्स्ट आउटकम था दैट वाज एजेंडा 21। ये एक ग्लोबल एक्शन प्लान था फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा आउटकम क्या था? रियो डिक्लेरेशन, मतलब कि प्रिंसिपल्स फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। एंड थर्ड वाज फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि एक
सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स जो बताया गया था कि कैसे आप फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं इन अ मोर सस्टेनेबल मैनर, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। तो ये 3 इनका आउटकम था, किसका? अर्थ समिट का 1992। नाउ इतना डिस्कशन के बाद अगेन आई हैव पुट फॉरवर्ड अ क्वेश्चन कि शुड डेवलपिंग कंट्रीज प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एज फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड। क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चाहिए, एज फार एज अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? तो इस क्वेश्चन में आप एक बैलेंस्ड व्यू लिख सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि बोथ आर एसेंशियल, बोथ आर एसेंशियल। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके फॉर में, अगर हम बात करते हैं इसके फॉर में, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? तो अगर जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है इट विल रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जाहिर सी बात है। सेकंड क्या हो सकता है? जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इट विल इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। और क्या हो सकती है? जब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों ही होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट देयर विल बी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। सो विदाउट ग्रोथ कंट्रीज मे स्ट्रगल टू मीट बेसिक नीड्स, ये याद रखिएगा। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही बात करते हैं और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को इग्नोर करते हैं तो फिर क्या हो सकता है? प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है। देखते हैं फिर अगर हम सिर्फ फोकस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फोकसिंग ओनली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? ठीक है। पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है? रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स डिप्लीशन हो सकता है। रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्स, वाटर, मिनरल। देयर विल बी पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा तो अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा तो इंडस्ट्रीज सेटअप होंगे। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ उतना ज़्यादा पॉल्यूशन, जितना ज़्यादा पॉल्यूशन उतना ज़्यादा क्या होगा? हेल्थ हैज़ार्ड्स। ठीक है। क्लियर है? तो अब यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर द क्वेश्चन कि शुड डेवलपिंग कंट्रीज प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो योर आंसर शुड बी इन अ बैलेंस्ड कि हाँ दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। फॉर में 3 पॉइंट, अगेंस्ट में 3 पॉइंट, ओवर। ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग मतलब कि जब आप एक स्ट्रैटेजी बना के प्लान्ड वे में रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। इट इज़ द केयरफुल आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज so that
दे आर यूज्ड एफिशिएंटली, इक्वली एंड सस्टेनेबली। अगर आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें तो इसका मतलब यही है कि नोइंग व्हाट रिसोर्सेस वी हैव, हमारे पास क्या रिसोर्सेस हैं, हाउ टू यूज़ देम वाइजली एंड सेविंग देम फॉर द फ्यूचर। ये हो गया हमारा रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ तक की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब बात आते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग अगर हम बात कर रहे हैं, पढ़े अभी, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जो एक डेवलपिंग कंट्री है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी वाइटल in a country like India because in India there is unequal distribution of resources. Some regions are resource rich, तो some regions are resource poor. किसी एरिया में पानी ज़्यादा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी एरिया में विंड और सोलर एनर्जी ज़्यादा है बट पानी नहीं है। जैसे इन द केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वाटर ज़्यादा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। राजस्थान में विंड ज़्यादा है, सोलर एनर्जी का पोटेंशियल ज़्यादा है बट वाटर स्कैसिटी है। तो बाय दिस टू एग्जांपल्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन इंडिया रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, पहला। सो आई गेस ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा, ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब कोई भी रिसोर्सेज को हम ओवर यूज़ करेंगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। Excessive and unplanned use of land, water, forest leads to depletion. So overuse of resources मतलब क्या हो गया कि when we use anything in excessive amount and unplanned use of land, water, forest leads to depletion. ठीक है। Third, large population pressure. India is a country with huge number of population. तो जब इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन को मोर डिमांड्स चाहिए, दे विल डिमांड मोर रिसोर्सेज एंड दैट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जब मोर रिसोर्सेज चाहिए होगा तो जाहिर सा बात है अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा इट मे लीड टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। गॉट माई पॉइंट? सो देर आर 3 reasons why resource planning is important in a country like India. Unequal distribution of resources, second, overuse of resources, and third one is large population pressure. Fine. Moving further, steps involved in resource planning, very very important. So basically resource planning में 3 steps होती हैं। पहला steps क्या है? Identification and inventory of resources across the regions of the country. It involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of resources. अब ये पॉइंट क्या है इसको समझते हैं। ये पॉइंट कह रहा है कि फाइंडिंग आउट व्हाट रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सपोज फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं इसका पता करना, इन्वेंट्री। इट इंक्लूड्स सर्वेइंग, मतलब कि विजिटिंग प्लेसेस एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। सेकेंड है मैपिंग, यानी कि जो भी रिसोर्स मिला है उसको मैप पे मार्क करना, मार्किंग रिसोर्सेज ऑन द मैप। एंड थर्ड वन इज मेजरिंग। मेजरिंग मीन्स चेकिंग हाउ मच रिसोर्सेज इज अवेलेबल। सो ये क्या हो गया? क्वांटिटेटिव। एंड हाउ गुड इट इज़, इट मीन्स क्वालिटेटिव। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ था आइडेंटिफिकेशन है इन्वेंट्री, इसका मतलब कि किस पार्ट ऑफ कंट्री में क्या रिसोर्सेज है। इट इन्वॉल्व सर्वेइंग, उस जगह पे जाना, रिसोर्सेज का पता करना। मैपिंग मतलब जो रिसोर्स मैप है उस पर उस रिसोर्सेज को लोकेट करना। एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि वो रिसोर्स कितने क्वांटिटी में है और उसका क्वालिटी क्या है। फाइन। सेकेंड स्टेप इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. तो बेसिकली ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट मीन्स मेकिंग अ प्रॉपर प्लान टू यूज़ एंड डेवलप रिसोर्सेज इफेक्टिवली, कि एक प्रॉपर प्लानिंग
के साथ हमको रिसोर्स को डेवलप करना है. द प्लान शुड इंक्लूड व्हाट? टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स टूल्स एंड मशीन्स. स्किल, दैट मीन्स गिविंग ट्रेनिंग टू पीपल टू वर्क. Institution means government bodies to manage and control the process. ठीक है. एंड द फॉर एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, अगर हम इस पॉइंट्स को आपको हम एग्जाम्पल से समझाएं तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन अ ड्राई एरिया. ड्राई एरिया मतलब जहाँ पे पानी का कमी है, सूखा एरिया है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? दे विल यूज़ टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल ड्रिप इरीगेशन, क्योंकि ड्रिप इरीगेशन वो इरीगेशन होता है जहाँ पे वाटर का वेस्टेज कम होता है. प्रोवाइडिंग स्किल्स, इट मीन्स व्हाट? कि फार्मर्स को हमको प्रॉपर ट्रेनिंग देना अबाउट मॉडर्न फार्मिंग. सेट्स अप इंस्टीट्यूशंस, उस एरिया में एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या कोई स्कीम्स को लॉन्च करना. ठीक है. सो आई थिंक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है, ये क्या है, और एग्जाम्पल्स को दे के भी आप समझा सकते हैं. यू कैन कोट एग्जाम्पल ऑल्सो. थर्ड वन इज मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. अब इस चीज़ को समझिए. मान लेते हैं सपोज कि ए यहाँ पे क्या है, ये झारखंड है. ठीक है. और ये मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश है. तो चूँकि झारखंड एक प्लेट्यू में है एंड प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा है. ठीक है. यहाँ पे कोल का डेफिशिएंट है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोल झारखंड में ज़्यादा मिलता है तो झारखंड में ही सिर्फ कोल इस्तेमाल होगा. नहीं, अरुणाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया. तो जो हमारा रिसोर्स प्लानिंग होगा वो ओवरऑल कंट्री के प्लान से मैच करना चाहिए. अगर इनको कोल का ज़रूरत है फॉर देयर डेवलपमेंट, येस वी विल डेफिनेटली गिव. वाई? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया. अगर ये डेवलप करेगा तो मेरा देश डेवलप करेगा. ये एटीट्यूड होना चाहिए. ठीक है. सो इट सेज मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. आई होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. तो जाहिर सी बात है, रिसोर्सेज को कंजर्व करना एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ आई थिंक राइट ऑफ एवरी वन. आपका छोटा सा स्टेप हो सकता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दे किसी पे. आप जब ब्रश कर रहे हैं, टैप खोल के रखे हैं, दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ वाटर. अगर आप हो सकता है उसको क्लोज़ कर दें तो हो सकता है कि किसी के गरीब के घर में कुछ देर के लिए पानी आ जाए. तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम नेशनल लेवल पे कुछ इम्प्लीमेंट करना है. नहीं, योर स्मॉल स्टेप कैन ब्रिंग अ बिगर चेंज. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको याद रखिएगा बस. 3R spread. 3R means reduce, reuse and recycle. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में याद रखिएगा बस इसको, 3R spread. 3R means reduce, reuse and recycle. S means sustainable development. P means proper resource planning. R means using more of renewable resources. E means educating the masses about resource conservation. A means afforestation and D means drip irrigation. ख़त्म. सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में अब कोई भी आपसे पूछे क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, 3R स्प्रेड. 3R मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल. S मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. P रिसोर्स प्लानिंग. R रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करना. E एडुकेटिंग द मासेस अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन. A afforestation. D drip irrigation. Fine. Now coming to land resources. अब ये बात समझिए कि लैंड जो है हमारा ये फिक्स्ड है. सपोज मान लेते हैं कि एक आदर्श नाम का बच्चा है. ठीक है. उसका एज अभी 14 ईयर्स है. 10 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, 24. अब इस आदर्श के पास आज के डेट में 1 एकड़ ऑफ लैंड है. तो क्या 10 साल के बाद 10 एकड़ ऑफ लैंड हो जाएगा? क्या होगा? क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स लैंड इज़ फिक्स्ड. इसका मतलब है कि लैंड इज़ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड. और जाहिर सी बात है कि लैंड इज़ एन एसेट ऑल्सो.
बट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। ना आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एक चीज़ समझिए, चाहे वो कोई सा भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, कोई सा भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो, या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, बिना लैंड के पॉसिबल नहीं है। नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी पॉसिबल विदाउट लैंड। सेकेंड थिंग, लैंड as a resource supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, and many more things. So based on these 2 points, we can say definitely that land is an asset of finite magnitude. Land is a fixed resource. The size of land will not increase day by day. Got my point? Moving further, लैंड रिसोर्स की बात करें तो एक तो ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी है पहला। दूसरा, इसमें क्या है, कॉम्पिटिंग यूजेस है। ठीक है, जैसे कि लैंड इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर के लिए, फाइन, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होगा तो आपको होम्स चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, डिमांड ऑफ लैंड विल इंक्रीज। जैसे जैसे डे बाय डे द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, then the demand for land will also increase. But the irony is that the land area remains the same. So it will lead to what? Tell me. Shortage and overuse. Simple समझिए एक चीज़, population will increase, so demand for land will also increase, but land is fixed. But land is fixed. तो क्या हो जाएगा? Shortage of land, and this will create a mega problem. ठीक है, और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है लैंड यूटिलाइजेशन। तो लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है? व्हेन लैंड इज़ यूज फॉर मल्टीपल यूजेस, इसका मतलब होता है लैंड यूटिलाइजेशन। इट रेफर्स टू वेरियस वेज इन विच लैंड इज़ यूज्ड। पहला क्या है? फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। यस, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। लैंड कवर्ड विद ट्रीज एंड वेजिटेशन मीन्स फॉरेस्ट। एंड वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट? टू हैव इकोलॉजिकल बैलेंस, वाइल्ड लाइफ एंड रेनफॉल। Second category of land is land not available for cultivation. So one is barren land and wasteland. ठीक है। Second is land put to non-agriculture uses. पहले आपको second point समझाते हैं, BA वाला, then I'll make you understand the first point. Land put to non-agriculture uses. अब जहाँ पे रोड है वहाँ पे तो you cannot grow crops. So that comes under land put to non-agriculture uses. ठीक है, चाहे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, ठीक है, ये सब में क्या है कि यू कैनॉट ग्रो क्रॉप्स, नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। क्या ये दोनों सेम है? अगर सेम होता तो बैरन लैंड और वेस्ट लैंड लिखते, ना कि एंड लिखते। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। ठीक है, चलिए, तो बैरन लैंड क्या होता है? इट्स कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव। ठीक है, वेस्ट लैंड क्या हो जाएगा हमारा कि करेंटली अनप्रोडक्टिव। ठीक है, करेंटली अनप्रोडक्टिव बट कैन बी इम्प्रूव्ड।
ठीक है, और क्या हो सकता है, कैन नॉट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, बैरन लैंड जो है कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, कैन बी मेड फिट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, बैरन लैंड का अगर एग्जांपल बोलें तो ये हो सकता है, एग्जांपल लिख सकते हैं रॉकी एरियाज़, फिर बोल सकते हैं डेजर्ट्स, ठीक है, स्टीप हो गया, माउंटेन्स हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है। अगर हम वेस्टलैंड की एग्जांपल की बात करें तो एक डिग्रेडेड लैंड, चाहे वो लैंड किसी भी कारण से डिग्रेड हुआ होगा, तो इट कम्स अंडर वेस्टलैंड बिकॉज इट इज़ करेंटली अनप्रोडक्टिव। अगर कहीं पे सॉइल में देयर इज अ सलाइन सॉइल, तो वहाँ पे वी कैन से दैट इट इज़ वेस्टलैंड। क्लियर है? सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन के अंदर दो चीज़, बैरन वेस्टलैंड, इसका डिफरेंस वी हैव डिस्कस्ड। सेकेंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, रोड्स, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा वैसे वैसे इस कैटेगरी का लैंड इंक्रीज़ करेगा। व्हेन आई से अर्बनाइजेशन मीन्स कि जब रूरल से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होगा टुवर्ड्स सिटीज़ तो उसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। ठीक है, हाँ। नाउ नेक्स्ट इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में पहला है हमारा परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी इंसान है, सपोज़ मान लेते हैं कि एक बच्चा है अर्नव, ठीक है, उसके पास 100 गाय हैं और 50 भैंस हैं, सपोज ही इज़ हैविंग 100 cows and 50 buffaloes, तो he needs to feed them every time, he cannot feed at home, so he will take them to a land which is meant for pasture and grazing. अब सपोज उसके अर्नव इज हैविंग 100 cows and 50 buffaloes and I am having 1 acre of land and I am growing some vegetables, so he cannot bring all those cattle in my agricultural land just to feed them, so he will take them to permanent pasture or grazing land which is meant for that purpose only. Second category under this is land under miscellaneous tree crops and groves. First understand कि groves क्या होता है. It's a group of similar trees. सपोज़ कि आप कभी गए होंगे ऐसे गांव में और देखे होंगे कि एक एरिया में सिर्फ मैंगो ट्रीज़ हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रूव्स। सिर्फ कोकोनट ट्रीज़ हैं, दैट इज़ ग्रूव्स। ठीक है, सो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, इसका मतलब क्या है कि दीज आर लैंड वे ट्रीज आर ग्रोन बट नो रेगुलर क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस आर ग्रोन। तो ऐसे लैंड पे क्या होता है कि हम नॉर्मल क्रॉप्स जो रेगुलर क्रॉप्स है वो ग्रो नहीं करते, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, ये हम नहीं ग्रो करते। इंस्टेड वी ग्रो ट्रीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्चर्ड्स, चाहे वो एप्पल का हो, मैंगो का हो, ऑरेंज का हो, वी ग्रो कोकोनट ट्रीज, वी ग्रो रबर ट्रीज। तो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, इस कैटेगरी का जो लैंड है वो कल्टिवेटेड लैंड में काउंट नहीं होता है या कल्टिवेटेड एरिया में काउंट नहीं होता है। These trees are not included in cultivated area. और क्यों? Because cultivated area mainly means land used for seasonal crops. Wheat हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये पॉइंट अब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये क्या होता है? तो लैंड दैट कैन बी कल्टिवेटेड बट इज नॉट यूज करेंटली। ठीक है, तो लैंड पे कल्टीवेशन हो सकता है बट करेंटली वो यूज़ में नहीं है।
ठीक है, मे बी इट हैज़ बीन लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, 5 साल से या ज़्यादा उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फैलो लैंड। तो फैलो लैंड मतलब क्या होता है कि जब हम किसी लैंड को छोड़ देते हैं अनकल्टिवेटेड इन ऑर्डर टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी, व्हेन अ लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड फैलो लैंड। अब इसके अंदर दो चीज़ है, एक हो गया आपका करेंट फैलो, दैट मीन्स कि उस लैंड को हम 1 साल से कम एग्रीकल्चर ईयर के लिए छोड़ देते हैं टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी। बट इफ़ आई टॉक अबाउट अदर देन करेंट फैलो, तो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 years, ये क्लियर है। और जो लास्ट कैटेगरी ऑफ लैंड है वो हमारा है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? लैंड एक्चुअली यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी फॉर एग्रीकल्चर। नेट सोन एरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी फॉर एग्रीकल्चर। अब इसमें एक वर्ड है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब ये बताइए क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो विल अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। सपोज देयर इज अ फार्मर अनमोल, ठीक है, चलिए एक फार्मर है हमारा जिसका नाम है अनमोल। नाउ ही इज हैविंग 10 hectares ऑफ लैंड एंड ही ग्रोज, एक बार वो ग्रो करता है उस 10 hectares पे रबी क्रॉप, दैट इज़ वीट। और जब फिर खरीफ सीज़न आया तो ही ग्रोज राइस ऑन ऑल 10 hectares ऑफ लैंड, यानी कि रबी सीजन में 10 hectares पे उसने वीट ग्रो किया एंड खरीफ सीजन में 10 hectares पे उसने राइस ग्रो किया। तो हमारा नेट सोन एरिया क्या है? तो नेट सोन एरिया क्या है कि वो उसके पास कितना लैंड था? 10 hectares था, तो हमारा नेट सोन एरिया हो गया 10 hectares। बस उस 10 hectares पे उसने 2 बार क्रॉप्स ग्रो किया पूरे 10 hectares पे, तो हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या हो जाएगा? 10 + 10 दैट इज़ 20। गॉट माई पॉइंट? यहाँ तक क्लियर होगा? ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है। ये क्वेश्चन है आपका लैंड यूटिलाइजेशन पे, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, बिलीव मी। प्रॉपर लैंड यूटिलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स द level of development of a country. Critically examine this statement with example. तो आपको इसमें क्या करना है? आपको फॉर भी लिखना है एंड अगेंस्ट भी लिखना है, ठीक है। यू मे राइट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इजी क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा, बट ट्विस्टेड क्वेश्चन को अगर आप डिकोड करके आंसर लिख ले रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन अ पोजिशन दैट कि यू विल नॉट पैनिक इफ़ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एनीवेयर। एंड मेरा उद्देश्य वही है कि आपको इतने डिटेल में समझा देना है कि कोई भी क्वेश्चन आए, यू विल बी इन अ पोजिशन टू फ्रेम द आंसर। सो आई होप कि आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कुछ शॉर्टकमिंग्स होगा तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए कि हाँ सर ये कमी था, इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन, ठीक है। तो आई एम नॉट अ टीचर बट आई एम अ स्टूडेंट्स टीचर, ठीक है। तो आपके हर फीडबैक को आई टेक इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव डे बाई डे, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग today's lecture. Part 2 will be coming very very soon, and once the chapter is over, I'll provide you a worksheet with all competency based and funnel based questions. Till then, goodbye, take care of your health and stay hydrated, as the entire India is burning with 40 degree 45 degree. So kindly stay at home, keep drinking water. Thanks, bye bye, take care.